ब्रेन की इंपॉर्टेंस मैं पहले शायद कई जगह हाँ. ब्रेन की इंपॉर्टेंस इससे आती है अगर पब्लिक समझे कि ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2% ऑफ द बॉडी वेट. अगर पूरी बॉडी का अगर हम वेट लें तो ब्रेन का वेट इज ओनली 2%. But it consumes 20% of blood supply and 20% of energy. Brain is a painless structure. If you cut brain in a conscious patient, you will never feel pain. ये बात करेगा करते रहो आप. This is very मतलब surprising fact for most of the people. अब आप कहोगे जब ब्रेन पेनलेस है तो हेडेक होता क्यों है? तो मॉडर्न फिनोमेना से हम समझते हैं, इसमें आपसे बात की कि ब्रेन फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है. व्हाट इज़ ब्रेन फॉग? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट मेडिकली? हमारे जो टाइम है एआई का, जब आपने कहा हम इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं और जैसे जैसे हर चीज़ चैट जीपीटी है, इतने सारे टूल्स बन गए हैं, अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जो एक्चुअल ब्रेन है इसका क्या रेलेवेंस रह जाएगा? विल वी सी मोर रीजनरेशन? विल सी ब्रेन रॉट? व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द ब्रेन हेल्थ? Thank you, sir, for being here on a very short notice. And I think it's a privilege for me कि मैं आपसे ऐसे बात भी कर पा रही हूँ. Like I have literally seen you from a very young age, and there's so much you have inspired all of us from. And आपका जो पूरा एक journey रही है medicine के साथ, close to 4 decades now. For almost 4 decades. And you were one of the first neurosurgeons in the state of Uttarakhand. In fact, अब Uttarakhand था भी नहीं. That is a part of Uttar Pradesh. So, sir, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. Like, why you chose to become a doctor? What was your journey? And if you reflect these 40 years of your career. Yeah, definitely. I mean, thanks, Shika, for calling. And I've known you for, I think, 25, 30 years. No. So, actually, I was born in district Tehri. There's a place, Pratap Nagar area. I was born there. And my primary education was in Dehradun. Okay. जो शुरू के जो till 8th I was in Dehradun. And then because of some reason, because my parents, they were primarily based in Uttarkashi. It is another district. So they called me to Uttarkashi, and I did my 10th and 12th from Uttarkashi. अच्छा. And Uttarkashi was a very remote area. मतलब that was उन दिनों तो because now you have everything in a place. उन दिनों कुछ नहीं होता था. Even phone was a luxury. phone होना भी बड़ा मुश्किल होता था. तो वहाँ के बच्चे जो होते थे, they did not have exposure to any of these competitive exams. Okay. One of my senior who was in Dehradun, he got selected in one of the medical colleges in Kanpur, and then he called me. He knew that I am reasonably good in studies, so he called me कि नहीं महेश तुम्हें देना, तुम CPMD दो. So I was not very much inclined towards medicine. I'm frankly speaking, I was not inclined because luckily we're well-to-do family. We had all those businesses in Uttarkashi, so I wanted to command something. I had to run a we had a theater picture hall था वहाँ पे. अच्छा. So we want to run कि नहीं यार वो because I can see that कि लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं आपको even DM is coming, SDM is coming भाई picture जाना है something and because there was no exposure also. So but luckily my physics was good. He persuaded me that to give CPMT, and I gave CPMT, and just because of my physics numbers I got selected in college. But then once I went to KMCA, I fell in love with medicine. I knew that it is something which was, I think that was my best reason to go for medicine, and I was there. And then obviously if you are a little sincere in medical cause, what is required is sincerity. If you are not bunking classes, you are a little sincere, they teach you so much. And Shikha, I'm really proud of my MBBS teaching. Again, I've said it earlier also. I've done my general surgery also, I've done my MCH in neurosurgery also, but I'm still proud of my basic graduation in the way they taught us. Anything. अगर आप पढ़ाएंगे, आप कितने भी आप मंद बुद्धि हो, आपको टाइफाइड 4 बार पढ़ा देंगे, आपको वो ब्रेन का फीवर 5 बार पढ़ा देंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुसे. तो that type of teaching we had, and that is why these colleges are known. Correct. These medical colleges are known for their reputation because they teach you so much. So I was lucky that I studied in King George Medical College, and then obviously if you are reasonably good, then you get post graduation. Those days we used to get post graduation on merit, not there was no competition that day. Okay. So we got a MS General Surgery. We did that, and for super specialty that there was a competition all India level. And when I appeared for that exam, that पूरी इंडिया में उस समय I think 25 से 30 सीट्स होती थी पूरी इंडिया में फॉर न्यूरो सर्जरी. एंड इन नॉर्थ पार्ट एम्स हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर एंड लखनऊ, देयर वाज नो अदर प्लेस. वी डिड दैट एंड देन देयर वाज 3 years course, so it took 12 to 13 years to become a neurosurgeon.
तो फिर वहाँ पे हुआ, फिर देन आई हैड ऑप्शन टू स्टे बैक इन कॉलेज एज अ फैकल्टी और एज अ समथिंग, but somehow I had something because it is required in this area. There was no one here. Correct. And someone told me कि नहीं यार, यहाँ से जो पेशेंट को हेड इंजरी होती है, जो ट्यूमर होता है, उनको पीछे चंडीगढ़ जाना पड़ता है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, एम्स जाना पड़ता है, समथिंग दैट. So I decided that I will definitely come to this part. That time is a part of Uttarakhand. उत्तर प्रदेश. Uttar Pradesh. So I came here, or again that was the best region for me and for public also. For more for the public also, because the doctors, they realize कि यार neurosurgery की, क्योंकि you need, the time is very important in neurosurgery. It is not an elective thing. Brain hemorrhage हो गया किसी को, पेशेंट को चोट लगी, spinal injury हो गया, time is important. और हम लोग कहते हैं अपने न्यूरो में कि the time is brain, you know. Time is very important. 3 minutes hypoxia and the brain can cause irreversible damage. तो इसलिए हम लोगों की ये आपकी लग्जरी नहीं है न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजी. It's a necessity. Necessity. It is necessity. We need immediate attention. So then I was here. Then we initially I practiced solo, like in a different nursing homes, and then we came with this combined medical institute, which was the first multi-specialty hospital in A well-equipped hospital in Uttarakhand. first Correct. in 2001, और तब से वहाँ पे चल रहा है. And sir, considering उत्तराखंड एक हिली स्टेट है, the number of road traffic accident इतने ज़्यादा होते हैं. And मैंने भी एक टाइम पे CMI पे थी, तो मैं देखती थी कैसे एम्बुलेंस में लोग आते थे, and उनको मतलब आप हमेशा वहाँ पे रहते थे. It was always that immediately हम उसकी सर्जरी के लिए आप प्लान करते थे. मतलब मैं देखा है उसको. And I think you have been lucky and you've been a boon to the state of Uttarakhand, and people depend on you so much. एंड आज की इस कॉन्वर्सेशन में सर हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे ब्रेन को आपसे. जैसे आपने कहा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां जो आम जन को बहुत ज़्यादा होती है. थोड़ा माइग्रेन को टच करना चाहेंगे. मैं ऑल्सो समझना चाहूँगी कि अल्जाइमर्स बढ़ रहा है, डिमेंशिया बढ़ रहा है, ब्रेन फॉग बहुत हो रहा है, लोग इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, लोग सोचते हैं कोई मैजिक हो जाएगा, हम एकदम से स्मार्ट बन जाएंगे. आई मीन सो मेनी थिंग्स आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू टुडे ऑनेस्टली. इस पूरी चर्चा का जो we'll try to make it dialogue which is interesting to public also. So we'll start with the brain. ब्रेन. सो आई तो वांट देखो ब्रेन की इंपॉर्टेंस मैं पहले भी शायद कई जगह हाँ. ब्रेन की इंपॉर्टेंस इससे आती है कि अगर पब्लिक समझे कि ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2% ऑफ द बॉडी वेट. अगर पूरी बॉडी का अगर हम वेट है तो ब्रेन का वेट इज ओनली 2%, बट इट कंज्यूम्स 20% ऑफ ब्लड सप्लाई एंड 20% ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी. सो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेन कि कितना इंपॉर्टेंस है. देखिए जो जिसने भी बनाई, जिसने हमारा शरीर बनाया, जो भी बना, इफ वी थिंक देयर इज अ सुपर पावर, ऑफ कोर्स इट हैज डिसाइडेड टू गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द ब्रेन. जैसे हम कहते थे कि हमारे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसको दी जाती, पीएम को दी जाती, हर जगह दी जाता. सो ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड इज मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑर्गन ऑल्सो. मैंने आप देखिए, अगर आप क्रेनियम के अंदर एकदम skull, there's only हाँ. structure which is totally cannot penetrate it unless आप उसमें गोली मार दें या आप उसको कट ओपन करें. हार्ट के अंदर you can put a knife in the through the patient. पंक्चर इट. हाँ, Abdomen you can put it. राइट. But your brain you cannot, unless you open it surgically, you cannot go unless you break it. So it is it's so important. So brain is important. So I said कि 2% टोटल है बॉडी वेट का एंड 20% ब्लड सप्लाई इसकी चाहिए होती टू ब्रेन. सो दैट शोज इंपॉर्टेंस. एंड it is a computer which runs everything in our body. Secondly, most of the diseases nowadays, even to the extent of the hypertension, diabetes, we started saying this is psychosomatic now. The origin is in the brain. हम लोग कहते हैं कि हम बहुत खाएंगे, ऐसा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो that plays a part. They are risk factor for the hypertension, diabetes, obesity, everything. But there's something going in your brain which can also cause this thing. And there is recently now the things are coming. You never heard that there is a surgery for hypertension. Have you heard that? Never. मतलब unless there is a infarction. No. Primary hypertension. There's some vessel pressing on your nerves there, which is causing hypertension. So there things are coming. So everything is gone now, going to the brain. Now the brain, obviously now, you see, you have heard the brain dead patient. If your brain is not working, चाहे आपका हार्ट चल भी रहा है, you are of no use. You will never be a functional person. So brain dead में लोग कहते हैं इनका organ donate कर दो. So brain is very important. And obviously, in a medical science also, हम लोग जब पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, जब कहीं भी रहते थे, तो हमारे न्यूरोलॉजी यूज्ड टू बी, जैसे जनरल पब्लिक में जनरल साइंस फिजिक्स होती ना, सबसे डिफिकल्ट होती थी, बट जिसको फिजिक्स समझ में आया उसको सबसे ईजी होती थी. करेक्ट. तो हमारे यहाँ भी क्या होता था कि अगर आपको न्यूरोलॉजी का एग्जाम मिल गया तो आप टॉप करेगा, फेल हो जाओगा. बिकॉज इस न्यूरोलॉजी इज द
only science which is little mathematics. And also आपको पता है कि आपको पता है बिकॉज डॉक्टर आपको बताइए एग्जैक्टली आपको C5 पे अगर पेन हो रहा है नर्व पे आप कंप्रेस तो कहाँ दर्द है. So it is little mathematical. Otherwise we say that medicine is incomplete science. It is not. तो सुनिए ठीक है एब्डोमेन में आपको पता है लेकिन it is not. तो ब्रेन के लिए पब्लिक के लिए थोड़ा इतना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं व्हाई आई एम सेइंग दैट दे शुड यूज देयर ब्रेन. लोग कहते हैं ना कि ब्रेन लोग यूज नहीं करते हैं और कई लोग कहते हैं कि अगर लोगों में बता देंगे पब्लिक को भी कि ब्रेन एक ऐप है, वास्तव में ऐप है, तो प्रोबब्ली दे विल स्टार्ट यूजिंग इट. okay, that's a very good perspective to it. So sir, brain I'm really lucky that I'm a brain doctor. I feel proud of. brain के डॉक्टर. Yeah. तो लोग आपको कैसे समझते हैं? मतलब आज लोग तो न्यूरोलॉजिस्ट बोल भी नहीं पाते, न्यूरोसर्जन नहीं बोल पाते, क्या दिमाग के डॉक्टर ऐसा भी बोलते हैं लोग आपको? दिमाग के भी हाँ मैंने ब्रेन के डॉक्टर देखो ब्रेन आते ही ना लोगों ने दिमाग में एक बड़ा मतलब वो आया था यार कि ब्रेन के डॉक्टर सही. एक जमाना था पहले ब्रेन न्यूरो सर्जरी मैंने आप बताया जब मैं था उसमें 20-25 लोग निकलते थे एक साल में. पूरी कंट्री में 400 लोग थे. 400 पूरी कंट्री में 400 लोग थे. ऑब्वियसली इट वाज अ डिफिकल्ट साइंस. द रिजल्ट्स वर पुअर. ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं होती थी. सिटी स्कैन कहाँ होता था उस समय. करेक्ट. So less people used to opt for that because the result and you need lot of hard work. ब्रेन ऑपरेशन आप कर रहे हो आपको बैठना पड़ेगा 5 घंटे 6 घंटे ब्लीड. सो रिस्क टू लाइफ वाज मच. तो ब्रेन सर्जरी यूजुअली पहले बहुत कम होती थी बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ टाइम द नाउ द यू हैव सीटी स्कैन योर MRI यू कैन डायग्नोस होती. सो इट इज लिटिल बेटर नाउ. जो हमें पहले कहेंगे भाई कि इसमें पहले 80% और 70% मोर्टेलिटी हो जाती थी पेशेंट से. अब नाउ इट्स लाइक एनी अदर सर्जरी. वी ऑपरेट ब्रेन ट्यूमर. इट्स लाइक अ गॉलब्लैडर ऑपरेटिंग. वी ऑपरेट ब्रेन ट्यूमर लाइक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग. इट इज बिकम इजियर फॉर अस आल्सो. तो सर लाइक मैं ये भी जानना जैसे आपके सामने अपने एवोल्यूशन देखा है मेडिसिन का, आपके सब्जेक्ट में देखा, सर्जरी में देखा, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज कम टू इंडिया नाउ एंड एवरी प्लेस लाइक देहरादून यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल टाउन एंड अभी तो यहाँ पे सारी ब्रांच बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं. तो यू हैव सीन दैट चेंज हैपनिंग and you think there is more to change in times to come? Definitely, it's ever changing. See, the way the technology is coming. मतलब आज से 30 साल पहले I have seen work in one of the best institution in India in MIS बेंगलोर में. 92-93 में तो उस समय वहाँ पे सिटी स्कैन रूटीन ही नहीं करते, तब भी एंजियोग्राफी करते थे. अच्छा. So now things have changed. Now you have CT scan. I can see everything in the brain. कहाँ एग्जैक्टली क्या लोकेशन है. आज से 30-35 साल पहले जब स्कैन वगैरह इतने कॉमनली नहीं होते थे या MRIs नहीं होते तो उस समय आप क्लिनिकल साइंस से जाते थे कि अगर पेशेंट का हाथ नहीं चल रहा तो मैं लेफ्ट साइड, अगर राइट हैंड नहीं चल रहा तो लेफ्ट साइड का ब्रेन मैंने यहाँ पे खोलना है. यू मे फाइंड अ लीजन, यू मे नॉट फाइंड अ लीजन. देन इट्स डू अनदर होल, सी देयर. सो देयर इज टू लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी बिकॉज ऑफ दैट. एनेस्थेटिक टेक्निक उतनी अच्छी नहीं थी, एनेस्थीसिया उतना अच्छा नहीं होता था. तो चीज़ें तो इवॉल्व हुई है. इट हैज मेड थिंग्स बेटर फॉर पेशेंट. उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं एंड इट हैज मेड लाइफ इजियर फॉर अस आल्सो, फॉर एज न्यूज आल्सो. नाउ वी कैन मॉनिटर. आपने देखा नाउ देयर आर इंट्रा ऑपरेटिव CT स्कैन एंड MRI दैट ड्यूरिंग सर्जरी यू कैन डू MRI एंड CT स्कैन इन बिग इंस्टीट्यूशन. आपने निकाला ट्यूमर, आपने देखना है यार कहीं छूट तो नहीं गया, आपने दोबारा MRI करा लिया. सो टेक्नोलॉजी इज फैंटास्टिक. आई थिंक दिस एंड नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स. नाउ आई टेल यू दिस इज न्यूरो नेविगेशन व्हिच आई यूज. I use it. What is that? Neuro navigation is something like, the brain is a very close space. तो आपने ब्रेन में आपको सपोज जाना है कहीं, आपने सिंगुलेट गैरस के पास में ट्यूमर है विच इज़ वेरी स्मॉल. पहले भी हम करते थे कि वी ओपन अप मेक अ लाभ मेजर बड़ा ओपनिंग बनाएंगे सर में एंड देन ट्राइंग टू रीच देयर समटाइम, और फिर यहाँ से जा रहे हैं फिर वहाँ से जा रहे हैं. देयर इज लॉट ऑफ फिडलिंग इन द ब्रेन. अब क्या होता है कि हमारे पास CT स्कैन को फीड कर देते हैं कंप्यूटर में, उसको लोड करते हैं न्यूरो नेविगेशन मशीन में. उसके बाद उसमें एक इंफ्रारेड कैमरा होता है और फिर हम उसको मैप करते हैं ब्रेन को. एवरी पॉइंट यहाँ मैप कर दिया, यहाँ मैप कर दिया. नाउ इफ आई पुट माई प्रोब एंड इट एग्जैक्टली शो मी कि आप यहाँ से किस डायरेक्शन में जाना, 15 डिग्री तक करो, 20 डिग्री तक करो, एंड यू रीचिंग एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट. एंड इट इज़ फैंटास्टिक टूल फॉर अ न्यूरोसर्जन. न्यूरो नेविगेशन इज अ ब्यूटीफुल टूल. इट हैज मेड माई लाइफ. पहले क्या होता था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करना है, मैं OPD कर रहा हूँ, मेरी एंग्जाइटी बनी रहती थी कि यार वहाँ से खोलूंगा कहाँ से जाएंगे. बैक ऑफ द माइंड आप प्रोसेस कर रहे हैं, दो प्लान दिन बना रहे हैं. 2 दिन तक चलता था, 3 दिन तक चलता था. नाउ आई डू नॉट इवन प्लान. अब मुझे पता है वहाँ जाऊंगा, मैंने वहाँ पे लगाना एंड शो आई कैन सेंड यू दोज फोटोज, Please, I can show you those photos, I can show those videos, and I am putting my probe and that there I can see it's going in the right tumor. And at that point only I make a incision. पहले क्या होता था, इफ अगर मुझे यहाँ जाना आई विल मेक अ इncision एटलीस्ट स्क्वायर बहुत बड़ा, पूरा ब्रेन खोलो पूरा, फिर आप
ट्राई करो कहाँ जा रहे हैं, इट इज अ ब्लाइंड पोजीशन, इट इज टू ब्लाइंड। वी हैड एनाटॉमिकल मार्क, होते हैं हमारे पास लैंडमार्क्स होते हैं एनाटॉमिकल कि आप करोड़ से कितने आगे जाना पीछे जाना, बट देन प्राइमरीली न्यूरो नेविगेशन हैज हेल्प। इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग हम करने लगे, आपने सुना होगा अवेक नोट में रहती है। अब हम जो पेशेंट अवेक है उसके नोट में करते हैं, मैपिंग होती है, हमें पता है स्पीच एरिया ब्रोकाज एरिया यहाँ पे है, तो वहाँ पे आपने मैप स्टिमुलेट करा, पेशेंट की स्पीड बन जाती है, यहाँ नहीं जाना। आपने मोटर स्ट्रिप पे जो प्री मोटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है तो उसमें लगाया, पेशेंट ने हाथ चला और नहीं चला रहा, यू नो दैट आपने वहाँ नहीं जाना। तो द थिंग्स टेक्नोलॉजी इज ट्रेमेंडस। सर इसके बाद हम चलेंगे, मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है माइग्रेन, I think you know more about migraine than I know, because which is not true, but No. I have always tried to learn more and more. एंड हिस्ट्री से भी जब देखते हैं माइग्रेन, जब टेसो ने बहुत साल पे 18th सेंचुरी माइग्रेन को डिस्क्राइब किया, तब से अगर बात करें तब से लेकर अभी तक माइग्रेन के इतने एवोल्यूशंस आए जैसे आपकी सर्जरी के आए हैं, एंड आज वापस से वो न्यूरो, गैस्ट्रो, फंक्शनल, मतलब बहुत सारे डोमेन्स में आ गया है। मतलब शुरू में भी यही बात होता क्योंकि आपके नोजिया वॉमिटिंग बहुत है, फिर फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, रिकरेंट अटैक्स हैं। तो सर मैं आपसे इसका न्यूरो पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी पहले कि लाइक हाउ डू यू अंडरस्टैंड। पहले तो ये मैं शिवा बताना चाहूँगी जनरल पब्लिक के लिए, तो माइग्रेन वाज द कॉमनेस्ट सिम्टम आउट ऑफ ऑल द सिम्टम्स। वी इफ वी लाइक काउंट ऑन आवर फिंगर्स की बॉडी के कॉमनेस्ट, जो डॉक्टर के पास अधिकतर लोग जाते किसके लिए हैं, तो सर दर्द, पेट दर्द और कमर दर्द, दीज आर कॉमनेस्ट सिम्टम। 3 disorders Yeah. That's So, pain. हाँ। मतलब अधिकतर ये क्यों जाएगा सर दर्द पेन। तो अगर हम हेडेक को लें तो हेडेक का अगर हम वैसे तो आपने पढ़ा होगा मतलब इंटरनेशनल कर्स, एंड इट इज लिटिल समटाइम आई फील इज लिटिल कंफ्यूजिंग आल्सो, दिस इज वेरी लेंदी। बट अगर हम अगर देखें तो हम दो ही टाइप में कर सकते हैं, तो हम कहते हैं भाई प्राइमरी हेडेक और ये कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक में हम माइग्रेन इज वन ऑफ द प्राइमरी हेडेक विच इज इनसाइड द ब्रेन ओनली, प्राइमरी हेडेक हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि जैसे वो टेंशन टाइप हेडेक, जिसको कि भाई टेंशन की वजह से होता है, दैट इज ऑल्सो हेडेक। और तीसरा होता है कि जैसे ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेलिया जिनको कहते हैं, तो ये एक प्राइमरी में रखते हैं, और भी बहुत सारे इसमें तीन होते हैं। 10-11 टाइप के बहुत headache हैं, पड़े, हाँ। पता नहीं तीन किस सोचेंगे भाई कि माइग्रेन हो गया, टेंशन हो गया, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेलिया हो गया। सेकेंडरी हेडेक में मींस जो और कॉजेज हैं, और कॉजेज मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक। करेक्ट। मतलब सेकेंडरी मींस सेकेंडरी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, लाइक इट कुड बी बिकॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज, सबक्यूटेनियस हेमरेज या ब्रेन हेमरेज, वेस्कुलर कॉजेज, राइट। वेस्कुलर कॉजेज है जिसमें कि एवीएम्स होते हैं, एनरिज्म होते हैं, उनका रप्चर हो गया, वेस्कुलर कॉजेज हो गए। देन इट कैन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस हो गई पेशेंट को, उसकी वजह से हेडेक हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, एंसेफेलाइटिस उसकी वजह से हेडेक हो गई। देन देयर आर नॉन वेस्कुलर कॉजेज। नॉन वेस्कुलर कॉजेज क्या होता है, ट्यूमर है किसी के अंदर, टीबी की गांठ है, सिस्टिक सर्कोसिस है, पैरासिटिक है, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक, तो जैसे नॉर्मल हम कहते हैं। तो दे आर सेकेंडरी हेडेक मींस इट इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। जैसे अदर रीजन हाँ, मैं लोगों को ये कह सकता हूँ कि भाई प्राइमरी हेडेक में अगर आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं डिमॉन्स्ट्रेटेबल। अच्छा। इफ यू डू अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे पास ओपीडी में आ रहा है पेशेंट, चाहे कहीं भी जा रहा है, मैक्स में जाए हमारे पास है, तो अगर रूटीनली सीटी स्कैन एमआरआई करेंगे तो उसको प्राइमरी हेडेक में कुछ नहीं मिलेगा। हाउ क्लियर तो प्राइमरी हेडेक इज डायग्नोज्ड बाय हिस्ट्री। या मेडिकल हिस्ट्री जो हम लेते हैं, पेशेंट बस बात करते हैं, इसके लेवल पे आप बनाओगे कि इसको टेंशन टाइप हेडेक है, इसको उसको इसको माइग्रेन है, इसको क्या है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी हेडेक्स में यूजुअली यू विल गेट सम ऑर्गेनिक पैथोलॉजी टू डेमोन्स्ट्रेट बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन, करेक्ट। बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें मैं ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन होता है, मैंने हेमरेज आपको बता दिया। देन देयर आर सम न्यूरोलजिया जिनको हम कहते हैं भाई न्यूरोलजिक पेन होते हैं, जो कि ट्रांसजेमिनल न्यूरोलजिया इज वन ऑफ द क्लासिकल, वेरी ब्रूटल आल्सो, लोग बहुत ब्रूटल, दिस इज नोन एज सुसाइडल पेन। यस यस। बिकॉज समटाइम्स दे अटेम्प्ट सुसाइड, इतना सीवियर पेन होता है, इट इज समथिंग लाइक आप किसी को करंट लगा दें, एकदम बहुत सीवियर पेन है। ट्रांसजेमिनल इज वेरी क्लासिकल पेन। वैसे ही ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व का होता है, वैसे नाइन्थ नर्व का ग्लोसोफेरिंजियल होता है, तो न्यूरोलजिया हो गई। देन यू हैव पेन बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रक्चर विच इज सराउंडिंग आवर ब्रेन, साइनसेस हैं, आईज हैं, सर्वाइकल है, सो दे कैन आल्सो कॉज। सो अब अगर लोगों को कंफ्यूज ना करना चाहे तो प्राइमरी में 3 टाइप रख लेते हैं भाई, किसी माइग्रेन हो गया, टेंशन हो गया, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेलियाज हो गए, और दूसरा हम इसमें रखें सेकेंडरी में भाई हाँ कुछ भी है ब्रेन के अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आ गई जो कि पहले नहीं थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से हम जैसे कई बार सेकेंडरी की अगर बात करें, मतलब क्लिनिकल केस में कई बार देखा है कि लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं जी अचानक से ग्लायोब्लास्टोमा हो गया, ट्यूमर हो गया, कि बहुत तेज सिर दर्द था, सिटी स्कैन कराए तब निकल गया। जस्ट टू अंडरस्टैंड, कई लोग होते हैं, कब उनको ध्यान देना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर अ प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव। नहीं राधे, सी देन यू एक्चुअली क्या होता है, देन यू हैव टू
like you have to differentiate between a organic headache and non-organic. और उसके लिए it is not so easy, but then अगर हम जनरल पब्लिक के पॉइंट से बात करें, अगर आपको क्रॉनिक हेडेक है, if some patient comes to my OPD and says कि मुझे 20 साल से headache, I know there's nothing. Nothing means it has to be a primary either migraine or the tension type headache or something else. If a patient comes to me and says कि 3 days में बस बहुत severe headache है, then I have to think of that. It may not be tumor. See, now where do you start suspecting that red flags क्या है? वही, हाँ जी, The red flags क्या है? Short onset headache, short stay है, क्योंकि नॉर्मली माइग्रेन वाला यूजुअली बहुत बाद में आता है, हाँ, मतलब बिकॉज बाय द टाइम ही गेट्स अपॉइंटमेंट, बाय द टाइम ही माइग्रेन वाला जब तक सोचता है कि मैं जाऊंगा तो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, सेकंड करेक्ट। मिनट में 2-3 दिन में तो उसको पता अच्छा यार मैं ठीक हो गया, फिर वो समझ लेता है कि तो मुझे बहुत समय से तो सेल्फ मेडिकेशन करता रहता है, उसके बाद आता है। तो देन मोस्टली पेशेंट जब आते हैं यार ये बहुत हो गया, अब तो मुझे 3 साल हो गया, अब चले जाता हूँ. Short onset headache, sudden severe headache, and headache coming with any other accompanying symptoms. देखो फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज लोग करते हैं. Accompanying symptoms can be migraine also. कौन से? Blurring of vision can be in the migraine also. करेक्ट। There can be some numbness in the hand or legs. This can be but if ever these symptoms like or excessive vomitings, early morning headache is one thing which I want to stress here. Early morning headache. देखिए, early for a neurosurgeon, early morning headache is a worrying thing. Though it has other reasons also. अब आप कहोगे अर्ली मॉर्निंग हेडेक में क्या होता है कि जब पेशेंट सोता है रात में, पेशेंट के अंदर ऑलरेडी ब्रेन ट्यूमर है या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इज ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है. नाउ व्हेन वी स्लीप वी ब्रीथ स्लोली. व्हेन वी ब्रीथ स्लोली देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ CO2. ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा। CO2 का बोले, एंड CO2 इज अ वेसोडाइलेटर. ओके। CO2 इज अ वेसोडाइलेटर. जब तो वेसोडाइलेशन तो ब्लड ज्यादा जाता है, जब ब्रेन में जगह ही नहीं है, they say even if the brain volume increases by 30 to 50 ml, the patient will die. So when there is a volume increase, so patients usually they wake up early in the morning with a headache because रात में उनका CO2 का लेवल ज़्यादा था, वेसोडाइलेटेशन था, और वेसोडाइलेशन की वजह से ब्रेन में हेडेक होने लग गया. So early morning headache पेशेंट, और यूजुअली बच्चों में बहुत होता है. बच्चों में एक ट्यूमर होता है जिसको हम कहते हैं मिडल ब्लास्टोमा, 2 से 12 साल की उम्र के बीच होता है, एंड दे आर यूजुअली कम कि सब मेरा बच्चा सुबह उठता है तब तक हेडेक उतना नहीं है, सुबह उठ के उल्टी कर देता है. अच्छा, तो दिस वेरी कॉमन. तो early हेडेक एंड वॉमिटिंग। early morning headache and vomiting is a sign which you should watch, number one. But there can be early morning headache in other things also. अगर किसी पेशेंट को स्लीप अपनी है, रात भर खराटे है, इनकम्प्लीट स्लीप, दे कैन है बहुत सारे स्लीप साइनसाइटिस माइग्रेन के पेशेंट भी सर सिर दर्द उठते हैं, कई बार मैं देखती हूँ। देखे ना, तो वो भी मॉर्निंग होते हैं. बट नॉर्मली यूजुअली सारे हम कहते हैं यार कि डॉक्टर साहब जब वो ढलती सूरज के साथ में या चढ़ती सूरज में ज़्यादा उनको लगता है कि हो रहा है, ये रहता है, ठीक है. बट अर्ली मॉर्निंग देन बेटर टू इन्वेस्टिगेट रादर देन सिटिंग ऑन दैट. इज बेटर अर्ली मॉर्निंग. देन कोई मरीज पहले आएगा कि सुबह हेडेक होता और उल्टी आती, देन वी डू दैट. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक हेडेक and non-organic. Non-organic उसको कहते हैं which is not harmful. You do need treatment because they are disturbing your daily life. They are putting you off the work. तो वो भी करना चाहिए हमें. लेकिन आप अगर आप प्राइमरी हेडेक which is disabling but not life threatening and organic headache जिसमें आपने ट्यूमर काट कर लिया, तो ट्यूमर में यूजुअली क्या होगा कि शुरू में हेडेक होगा, बट देन एसोसिएटेड सिम्टम होंगे. मैंने विजन, लॉस ऑफ विजन इनवॉल्व, ब्लरिंग ऑफ विजन, हियरिंग प्रॉब्लम, आपको लिम्ब वीकनेस, सीजर्स, हायर मेंटल डिस्फंक्शन. सपोज पेशेंट के फ्रंटल लोब में है, तो he will start behaving like abnormal thing. He will not answer things. He will behave abnormally. Sometimes they will do bedwetting, पेशाब यहाँ कर दिया, वो कर दिया. So the frontal lobe signs they started coming. So that you have to watch that. पेशेंट अगर आपका फ्रंटल एरिया में यहाँ पे ऑर्बिटल रूफ के ऊपर है, तो यहाँ पे स्मेल की प्रॉब्लम आती है. पेशेंट कहता है मुझे सुनाई नहीं देता कुछ. एनोस्मिया समझे, पेनोस्मिया भी आते हैं कि मुझे बदबू से सुनाई पड़ती है. तो ब्रेन के जो लीजन्स होंगे डिपेंडिंग ऑन विच एरिया, लोकेशन पे सब लोकेशन पे बहुत सिंपल. पेशेंट के किसी हॉस्पिटल एरिया में लीजन होता है तो दे हैव हिमेनोपिया. अगर हॉस्पिटल लीजन जो होगा पीछे, तो दे कंट्रोल योर फील्ड, दे विल नॉट कंट्रोल योर विजन. विजन तो भाई आई है ऑप्टिक न तक, उसके बाद फील्ड, विजुअल फील्ड होते हैं. तो सपोज मेरे लेफ्ट साइड में कोई मेरा ट्यूमर है, तो मुझे राइट साइड का विजन नहीं दिखा, सो आई विल सी ओनली अप टू दिस पार्ट, आई विल नॉट एबल टू सी का. तो आपको देखने में मुझे मुड़ना पड़ेगा. तो डिपेंड करता है किस एरिया में है. स्पीच एरिया में तो एफेजिया, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा या कुछ, सेरेबेलम में तो अटैक्सिया हो जाएगा. तो ये तो बहुत
अपरेंट आपको हो गया, जी जिसमें कि भाई पेशेंट आएगा, मुझे लगता है कोई गाँव वाला भी कह रहे हैं मुझे आ गया, हम डॉक्टर दिखाना चाहिए। मेन प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू नो दैट पेशेंट हैज़ अ माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक। माइग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक में बहुत क्लासिकल है। देखो माइग्रेन में देखो टू द माइग्रेन अगेन यू हैव रेड इट इज सो मेनी वेराइटीज, Yeah. माइग्रेन विद ऑरा, विदाउट ऑरा, क्लासिकल माइग्रेन, मे बी माइग्रेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट इन माइग्रेन इफ यू से क्लासिकल माइग्रेन यूजुअली दे आर हेमिक्रेनियल, they are usually short lasting. We cannot say कि मुझे माइग्रेन 7 दिन तक हो रहा था, usually they will for few hours to few days. 4 to 72 आवर्स का एक क्लासिकल का Classical प्रेजेंटेशन है। हाँ जी migraines होता है, and most of them will have some triggers. They may have or they may not have triggers. They may. If there's a severe headache, then they will be accompanied by nausea, vomiting. तो ये classical hemicranial, and then in between the attacks they are absolutely fine. देखिए डॉक्टर साहब मैं तो उसके बाद आराम पहाड़ पे चढ़ जाऊँ, ये कर दूँ सब। Tension headache is a lingering headache. They will have more spikes when there's under stress, and usually if there's a bilateral in temporal, because most of these tension, what they do basically they start, उनके क्लिंचिंग टीथ रहते हैं, their temporalis is working most of the time, उनकी भौं चढ़ी रहती है, मेरे को टेंशन, their frontalis is working most of the time, तो वो अपना उसमें तो टेंशन headache is usually generalized, they get aggravated by stress, and it usually is a ongoing process, there is ongoing. सर एज आई एम हियरिंग यू, मेरे को एक सिम्टम होता है माइग्रेन का, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया। वो क्यों होता है माइग्रेन के केसेस में? देखो इसमें माइग्रेन में फोटोफोबिया देयर एनी स्टिमुलस, बट दीज आर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इन देयर न्यूरोलॉजिकल। अच्छा दूसरा एक मैं और बता दूं, देयर न्यूरोलॉजिकल, देयर फोटोफोबिया, देयर एनी एक्साइटेटरी थिंग्स, एनी एक्साइटरी थिंग्स। नॉट इज अ फोटोफोबिया। वो कहते हैं हल्ला भी नहीं करना, दरवाजे जोर से नहीं बंद करना, हम बहुत बात है कि हम लोग अंधेरा करके अंधे- वापस अंधे- जाते हैं। हाँ जी they don't want any external stimuli at that time ओके to aggravate their headache. They just want to be. अच्छा पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे पहले कि इनफैक्ट इवन आई एज ऑन टुडे आई राइट क्वेरी वेस्कुलर हेडेक। नाउ द थ्योरी इज गोइंग ऑन अ बैक एड कि ये कहते हैं इट्स नॉट प्योरली वेस्कुलर। पहले हम लोग क्या किया, हम लोग अभी मुझे लगता है कि वेस्कुलर एलिमेंट तो है ही, न्यूरल एलिमेंट इज देयर, बट द वेस्कुलर एलिमेंट इज देयर। नाउ कैसे शिवा दी, जब भी पेशेंट को हम लोग कहते थे कि थ्रॉबिंग हेडेक होता है, पल्सेटाइल हेडेक, पल्सेटाइल इज ओनली वेसल्स, राइट नथिंग कैन डू पल्सेटाइल हेडेक। करेक्ट थ्रॉबिंग हेडेक मतलब वेसल टॉप चल रही। तो क्या होता था कि इनके डिफरेंट स्टेज होती हैं, व्हाट ट्रिगर्स vasodilation in different subject, obviously there must be something which is causing vasodilation. When there's a vasodilation, now there is start headache, throbbing headache, patient brain का pressure बढ़ जाता है, he feels very, he is not feeling well, there's nausea because brain का pressure is throbbing. So vascular element, now what happens after then he wants to go to sleep, he just want not to be disturbed. Now the body की अपनी मैकेनिज्म होती है ना, देखो बॉडी भी तो अपने, आप इलाज नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा ना, तो अपनी क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है कि नाउ दैट सेकंड स्टेज कम्स व्हेन दीस वेसल्स स्टार्ट कंस्ट्रिक्टिंग। पहले बहुत ज्यादा फ्लो था ब्रेन में, अब कम हो गया, एंड दैट इज व्हेन द पेशेंट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट वांट टू लेट इट बी, कुछ नहीं करना, एंड देन फॉर सम टाइम्स इज लेथार्जी, ही डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एंड देन दैट्स इट। तो मुझे लग रहा है ये जो दो जो फिनोमेना हैं, वेसोडाइलेशन व्हिच इज कॉजिंग दैट, and then vasoconstriction which is now after that is lethargic, is up, you want to just be sleep, cannot do anything, feels drained out because that there's less supply of the brain. So that is a protective autonomic mechanism which is body is doing. न्यूरल एलिमेंट, इसलिए अब उन्होंने कहा साहब कि नहीं यार वेस्कुलर थ्योरी तो नहीं है, क्यों नहीं है वेस्कुलर थ्योरी, अब नाउ दे हैव डन सम एंजियोग्राफी ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग माइग्रेन एंड दे फाउंड कि यार ऐसा वेसोडाइलेटेशन तो नहीं था उसमें कुछ ज़्यादा, ऐसा तो नहीं, तो वी कैन नॉट इज ओनली वेस्कुलर। मोर फंक्शनल यू वांट टू से, मतलब कि ये आपके रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर होता है उस टाइम के लिए? नहीं मतलब देखो है तो, अब वो देखो, अच्छा दूसरा क्या होता है इसमें, ये कहते हैं कि जो हमारे जो ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब लोगों के लिए लोग जानते हैं कि ब्रेन विच परसीव्स पेन, विच परसीव्स इमोशंस, इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर। सुनो सुनो हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्रेन एज सच इज अ पेनलेस। अब तुमका क्या कहूँ उसमें, अगर मैं आपका स्कल निकाल दूं हाँ और ब्रेन में चाकू मारो, आप कॉन्शियस, आप पेन नहीं हुआ, कैन यू बिलीव दैट? द ब्रेन इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर। इफ यू कट ब्रेन इन अ कॉन्शियस पेशेंट, यू विल नेवर फील पेन, ये बात करेगा, करते रहो आप। दिस वेरी वेरी मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अब आप कहोगे जब ब्रेन पेनलेस है तो हेडेक होता है क्यों भाई? So now we have to cause headache. We have now 3 nerves which are responsible for headache. Trigeminal, 9th and 10th, which are supplying these soft tissue of to the brain. देखो
ब्रेन परसीव पेन तो परसीव ब्रेन ही कर रहा है सर्किट, लेकिन ब्रेन के अंदर कोई पेन एंडिंग नहीं है, ब्रेन के अंदर कोई पेन एंडिंग नहीं है। नाउ आप कहोगे डॉक्टर साहब फिर पेन क्यों होता? नाउ और स्किन इज पेन, स्किन में पेन होगा, हाँ, लेकिन ब्रेन के ट्यूमर है तो स्किन से क्या मतलब है? इफ यू कट स्किन देयर विल बी पेन, इफ यू गो फर्दर डाउन तो बोन आएगी, बोन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिक्रेनियम, दैट इज पेनफुल, दैट इज आल्सो पेन पेरिक्रेनियम बोन की अंदर layer जो होती है। अब अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर बाहर अभी बाहर अंदर नहीं गए होगी। पहले हमने एक खाल उठाई है स्कैल्प, उसकी भी 7 लेयर होती है, देन वी रीच दैट, अब आपने बोन दिख गई आपको। नाउ इफ यू टच अ बोन पेशेंट विल विंस, क्योंकि उसके ऊपर पेरिक्रेनियम है, पेरिक्रेनियम दैट इज पेनफुल। सो जब हम बोन में छेद करते हैं पेशेंट को पेन होता है। तो जो अवेक सर्जरी हम करते हैं, जिस समय तक हम स्कल खोल रहे हैं तब तक पेशेंट को थोड़ा सीडेट करके रखते हैं कि उसमें पेन है। नाउ इनसाइड द बोन यू हैव अ ड्यूरा मैटर, दैट इज पेनफुल, ड्यूरा इज पेनफुल। वंस यू ओपन ड्यूरा, उसके आप आदमी को बेहोशी से बाहर ले आइए, उसके बात करिए, उससे गाना गाए, उसके ब्रेन में ऑपरेशन कर दिए, उसको पता नहीं चलेगा। तो ब्रेन है। सो नाउ इफ यू ब्रेन इज अ डू नॉट हैव पेन एंडिंग्स, nerve endings, then why it is caused headache? It is caused headache because of brain vessels and stretching of dura and blood vessels. Okay. So it's not that brain is crying. No, brain को पता भी नहीं है. It's only when there's an increase in the volume, the dura will get stretched and that is painful. When there's a migraine, the blood vessels gets dilated, so that vasodilation, that will cause pain, headache. सो ब्रेन जब हेमरेज होता है तो ब्रेन को थोड़े पता है, ब्रेन का क्या होता है, जगह नहीं है तो वो ड्यूरा को स्ट्रेच करता है, वो ब्लड वेसल्स को ड्यूरा स्ट्रेच करता है, वो वीनस साइनस को स्ट्रेच करता है, उसकी वजह से पेन होता है। एंड द ट्राइजेमिनल नर्व, इट हैज नर्व्स गोइंग इनटू द स्कल बेस, बेसल ड्यूरा सप्लाई करता है। सो दैट इज द रोल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इज इन द माइग्रेन। एंड ये इस नर्व का बहुत ज्यादा रोल है माइग्रेन में, ट्राइजेमिनल आपने सुना। Some people have neck pain also, यार गर्दन मेरी टूट जाती है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं नेक पे जाता है। Yes. सो एक और तो क्वेश्चन, उसमें क्या होता है कि जो हमारी C2 3 नर्व्स होती हैं वो भी वहाँ से निकलती हैं, ब्रेन स्टेम से, जो उसके जो वो आती हैं, दे सप्लाई दिस पार्ट ऑफ ब्रेन, सो दे कैन आल्सो गेट स्ट्रेच एंड कॉज नेक पेन। हाँ, तो सर इसी में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो माइग्रेन का पेन है कई बार जैसे आप बताइए रहे हैं फ्रंटल होता है, टेम्पोरल रहता है, उसका क्या कारण है? ये नर्व डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, दिस से ये नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। और इनफैक्ट जो भी जिन भी थ्योरी जिन्होंने लाई है कि भाई इसमें कि ये ट्राइजेमिनोवेस्कुलर फिनोमेना है, ये न्यूरोवेस्कुलर फिनोमेना, इट्स नॉट एब्सोल्यूट वेस्कुलर फिनोमेना, ट्राइजेमिनोवेस्कुलर। तो समटाइम वी आल्सो गेट सरप्राइज कि देन व्हाई इट्स ओनली ऑन वन साइड, भाई ट्राइजेमिनल तो दोनों तरफ है, करेक्ट। ट्राइजेमिनल ट्रिगर तो दोनों होना चाहिए, बट देन देयर समथिंग व्हिच इज कॉजिंग ओनली वन साइड। बेसिकली क्या होता है कि ट्राइजेमिनल नर्व इज बोथ पार्ट, इसका सेंसरी पार्ट भी होता है और इसका मोटर पार्ट भी होता है। जो इसका ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर पार्ट होता है, हमारी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, टेम्पोरलिस है, मेसेटन को सप्लाई करती है, और इसका जो सेंसरी पार्ट होता है, ये आपने देखा कि ट्राइजेमिनल नर्व का ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ये सेंसरी पार्ट है इनका, वैसे बीच में होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा सेगमेंट इज गेटिंग मोर अफेक्टेड, सम पीपल हैव पेन हियर, सम पीपल हैव पेन देयर। ट्राइजेमिनल नर्व का एक और बहुत ज्यादा रोल उसमें होता है, जो आपने क्लस्टर हेडेक सुनोगे, क्लस्टर हेडेक व्हिच इज मोर इन द मेल्स, यस, लाइक माइग्रेन मोर इन फीमेल। और उसमें ऑटोनोमिक डिसफंक्शन बहुत होता है, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन दे आर सीन मोर इन मेल्स। नहीं, क्लस्टर इज मोर इन मेन एंड माइग्रेन इज मोर इन फीमेल। जी, एंड तो वो क्लस्टर हेडेक में उनका ट्राइजेमिनल नर्व का बहुत ज्यादा होता है। तो ये हम लोगों ने ये मतलब साइंटिस्ट ने कहा पहले टोटली वेस्कुलर था, नाउ न्यूरोवेस्कुलर फिनोमेना, ट्राइजेमिनल नर्व का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ इसमें क्या क्या ट्रिगर करता है, तो ट्रिगर्स भाई डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रिगर्स होते हैं इवन ऑर्डर, इवन परफ्यूम कैन कॉज स्मेल, ऑर्डर पेट्रोल की, डीजल की, इवन स्मेल, कोई ओल्फैक्टरी मतलब हमारा स्मेल एंड इट इज ट्रिगर्ड दैट नर्व। मेरे को याद है एक पेशेंट बोलती है मैं तड़का डालती हूँ घर में सरसों का तेल, तो ऐसे मुझे होता है। very classical. Then there are other things also. Some people say sometimes it may be not pure migraine. Now there is a term known as mixed headache syndrome, MHS. मिक्स्ड हेडेक सिंड्रोम, MHS। MHS. Mixed headache syndrome में क्या? You have an element of vascular, you have an element of stress also. Stress is precipitating your migraine. So there you have to treat both the things.
यू हैव टू गिव प्रोफाइलिसिस फॉर माइग्रेन, हम्म। बट यू हैव टू ट्रीट सबकॉन्शियस जो उसको डिप्रेशन है, स्ट्रेस, अंडरलाइन जो भी कारण हो सकता है उसको यू हैव टू सी दैट। Sir- एंड इसीलिए इसमें जो माइग्रेन ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेशन का रोल बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम बाद में बात करें, लेकिन ऑब्वियसली जो माइग्रेन का ट्रीटमेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया कि यार क्या क्या फैक्टर स्ट्रेस का रहता था, डिप्रेशन का रहता था, तो एंटी डिप्रेशन आती है। और दूसरा इसमें देखोगा आपने कि एंटी कन्वर्जेंट बहुत काम हाँ। आते हैं। मतलब जो क्लासिकल जब हम केडीटी पढ़ते हैं हाँ। तो उसमें दो उसमें है ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन का एक चैप्टर है, तो उसमें एक तो पहले अबॉर्टिव होगा फिर प्रोफिलैक्टिक होगा। तो अब एक एक्यूट अटैक के लिए वही आपने हाँ, प्रोफाइलिक्सिस के लिए कह रहा हाँ। प्रोफाइलिक्सिस में आप एंटी डिप्रेसेंट देते हो, आप एंटी कन्वर्जेंट दे दो, हम्म। बिकॉज देयर इज अ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स हम्म। इन दिस, देयर इज फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स एंड एंटी कन्वर्जेंट्स आर वर्किंग गुड फॉर द माइग्रेन तो सो ये एमएचएस वर्ड काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है yes this एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी आई मीन वेरी रेलेवेंट टर्म टुडे, क्योंकि माइग्रेन का अब हम थोड़ा सा ना एपिडेमियोलॉजी पे जाएंगे, कैसे बीमारी बढ़ रही है। आई थिंक आज से कुछ साल पहले आपको इतना माइग्रेन नहीं दिखता होगा, मतलब कुछ मिडिल एज वुमेन को होता होगा। अभी तो मेरे को लगता है बच्चे आते हैं 6 साल के 7 साल के, उन्हें बोलते हैं abdominal माइग्रेन है, मतलब हाँ। बड़े कंफ्यूजिंग से सिम्टम्स होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि देखो एक तो नाउ बट एपिडेमिक्स इसलिए बढ़ते, हेडेक मैंने बताया कॉमनेस्ट सिम्टम, बट प्रोबब्ली नाउ द ट्रिगर्स आर इंक्रीजिंग, नाउ इवन स्ट्रेस इज ट्रिगर। और अगर आप देख ले कौन ऐसा इंसान है जो स्ट्रेस नहीं है, one or the other regions Right. they have stress, so it gets triggered. So now probably we have more triggers, Hmm. so we are getting more migraine like symptom. It may not be classical migraine, again I'm saying it may not be classical migraine, it may be migraine like headache, or maybe migraine something like, but हाँ definitely the headaches are becoming more and more frequent. और उसके कारण तो यार हम लोग रात दिन अपने आप देखते हैं जो भी है, like besides our routine life we are occupied most of the time because of so many reasons, because of our professional work. And now I think the biggest hurdle which has become nowadays, see, I'm a doctor, but still I'm glued to my mobile most of the time. करेक्ट। So it has become addiction now. And this mobile is causing so many things, obviously there is a limit of everything. आप यहाँ इसकी लाइट है, आप इसकी जो अदर इफेक्ट्स हैं, इसकी रेडिएशन है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने एपिडेमिक्स में कहा कि कॉमन हो गया, तो मुझे लग रहा है कि देखो माइग्रेन, वैसे आपने कहा क्लासिकल माइग्रेन तो जेनेटिक हिस्ट्री होती है, फैमिली की हिस्ट्री होती है, दैट यू कैन नॉट चेंज। करेक्ट, मतलब वो So तो वो perfect हाँ, है। वो तो है। तो what I feel कि the headache you can say is becoming more, maybe migraine, maybe triggers are more now. इसमें ट्रिगर्स फूड आइटम के बहुत देखे हैं हाँ। कि पनीर से हो जाएगा, किसी को मतलब डेयरी किसी के लिए है, मतलब अल्कोहल बहुत लोग के लिए, चीज बहुत लोग के लिए। लेडीज में पेरीमेनोपॉजल, हाँ। सॉरी मेनोपॉजल, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बहुत होता है। प्रीमेस्ट्रुअल एंड बहुत क्लासिकल है, फेमस आती है कि डॉक्टर साहब मुझे 1-2 दिन पहले शुरू होता है, आफ्टर पीरियड्स आई एम फाइन। करेक्ट। That's it. So there are triggers which is and hormonal imbalance, and सारा खेल तो पूरा कहते हैं ना केमिकल का पूरा है, क्या सेक्रेट हो रहा है, क्या सेक्रेट नहीं हो रहा है, एंड दैट इट इसीलिए इनको जो जैसे सेरोटोनिन के लिए ट्रिप्टॉन्स का रोल आया इसमें कि यहाँ पे दे हेल्प इन ना प्रोफाइलैक्सिस। सो यू चेंज योर हार्मोनल वैल्यू इन द बॉडी, एंड बट आई स्टिल फील कि अगर this I've not read it, this is my own observation. If you have a migraine once in 3 months 6 months, please don't take any medicine. पेन किलर्स ना लें। नहीं प्रोफाइलिक्सिस भी ना करें, हाँ। क्योंकि प्रोफाइलिक्सिस इज अ वेरी लॉन्ग, if you want to treat migraine with a prophylaxis, it has to go for at least 3 to 6 months. करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको एक बार 3 महीने में एक बार हो रहा है and that frequency is not gone bad, I think that day you take whatever you want, whatever gives you relief. सर जैसे आपने बोला कि माइग्रेन के लिए कई बार तो हमें कुछ अंडरलाइंग कॉजेज हैं, या अपनी जो लाइफस्टाइल है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, मैनेज कर रहे हैं उसको। सो फ्रॉम देयर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आजकल जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड हम लोग जब हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, इट इज़ जस्ट नॉट योर फिजिकल वेलबींग, इट इज़ योर मेंटल वेलबींग, That's important. इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। और मेंटल वेलबींग तो आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, सब लोग मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, एंड पहले कई बार लगता था ओवर मतलब एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो भी हमारी जो हार्मोनल जो स्टेटस है बॉडी के अंदर, एंड दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग। राइट। इसीलिए हम कहते हैं भाई कि गुड हार्मोन्स बैड हार्मोन्स की बातें हमेशा होती जी जी जी। हैं। तो इसमें 2 हार्मोन मेनली जो डोपामिन और सेरोटोनिन की हमने बात करी, तो इससे बेसिकली क्या होती है कि जो इवन लाइक डोपामिन लेवल थोड़ा भी अगर नीचे जाएंगे तो दैट कैन ट्रिगर माइग्रेन, एंड व्हेन द डोपामिन इज मोर, डोपामिन के लेवल थोड़ा कम होते हैं तो अब माइग्रेन की शुरू के स्टेज में आपने देखा होगा कि पेशेंट थोड़ा लेथार्जिक है,
उसको थोड़ा जमाइयाँ आने लग गई हैं, सो ही फीलिंग लॉस ऑफ एनर्जी, सो दे ऑल कम। और जो सेरोटोनिन का होता है उससे क्या होता है कि जो पेन थ्रेशोल्ड होता है वो कम हो जाता है अगर सेरोटोनिन लेवल कम हो गया। सो दिस हार्मोन दे डेफिनेटली प्ले सम रोल। एंड वो जो हमारी ये हार्मोन को कैसे इफेक्ट करता है, तो इसीलिए जो ट्रिगर्स होते हैं वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू, नर्व एंडीज थ्रू जाके इनको अपना इफेक्ट करता है, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर माइग्रेन और हेडेक्स। सो उसके लिए साइकोसोमेटिक कॉजेज भी होते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपकी सोच कैसी है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, एवरीथिंग। इसीलिए मेंटल हेल्थ पे हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। और मैंने शुरुआत जब करी थी तभी मैंने कहा था कि यू लीव हेडेक, even other diseases which we thought are have some other reasons, other causes like hypertension, diabetes, they are also now being considered psychosomatic. Because there's some hormones playing role that is causing your blood sugar to rise, that is causing your arteries to constrict and cause hypertension. So these definitely have a role, and they are taken care. Like when we are designing a therapy or treatment protocol, then these hormones are kept in mind so that they can play a part in acute attack and as well as in a prophylaxis. So, but main important thing ki, like so rather than directly jumping into a medical treatment, if we have apparent triggers, then we should try to avoid those. Like अगर हमें 2-3 काउंट करने हो जैसे, अब जैसे सपोज मानो किसी ने कह दिया साहब कि मुझे पनीर खाने से होता है, छोटा सा अच्छा मतलब कोई डाइटरी एलर्जी, अवॉइड दैट। अच्छा ओके, कोई कहता है मैं राजमा जिस दिन खाती हूँ मेरा हेडेक होता है, you avoid that. Perfume is something which is triggers known as trigger, you avoid that. So if you can avoid, so that is something which we can do on a day one. And but if the frequency is too much, and some people have very periodically, whether there is any trigger or not, and if the frequency is more than I see, you cannot feel, it will depend from every person to every person. I have patients who say that sir मेरा माइग्रेन तो ठीक हो गया, मैंने 6 महीने दवाई खा ली आपकी, मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन मैं दवाई बंद नहीं करूंगी। नाउ दिस इज देयर वर्ड, रादर देन दे आर टेलिंग मी कि डॉक्टर साहब कब तक दवाई खाएंगे, दे आर सेइंग कि तब मैं दवाई बंद नहीं करूंगी अब। व्हाई? सर मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही। मींस दैट वाज, यू कैन नॉट आप किसी पेन को थ्रेशोल्ड को आप या पेन को आप मेजर नहीं कर सकते। देयर इज नो थर्मामीटर, आपका टेम्परेचर आप थर्मामीटर से आप मेजर कर लीजिए। पेन तो सब्जेक्टिव है ना, आप कितना मुझे बता रही हो, आप पे कितनी बीत रही, कितना आपके और कितना सहन कर सकते हो, एवरीथिंग विल डिपेंड। हाँ, सो पेन के लिए जो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है, बिकॉज इट इज यूजुअली अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, राइट, तो बिफोर वी स्टार्ट प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट वी डेफिनेटली आस्क पेशेंट कि भाई आप तुम्हारी बताओ तुम्हें इसकी वजह से कष्ट कितना है, इसकी वजह से कष्ट है। बट देन देयर आर फ्यू माइग्रेन व्हिच कम्स विद, आपने सुना होगा हेमिप्लीजिक माइग्रेन होता है, पेशेंट को टेम्परेरी हेमिप्लीजिया हो गया, यस, एंड समटाइम्स दे गो टू us also, right? So we do investigate them with the MRI करा लिया, ये कर लिया, कोई nothing is coming out. So those things has to be treated with a prophylaxis. और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत रेयर है, 1 साल में एक बार है, 6 महीने एक बार है, आई थिंक वी कैन डू with the SOS treatment. हाँ, That we can do SOS treatment. So migraine, most of people they diagnose by themselves. They come to our OPD. not every headache is migraine, No. वो बहुत clearly बोला जाता है, every migraine is a type of headache. And then I obviously know I've talked to Vaidji also, and then when he was starting this project, that time also we were discussing, and he said I'm taking this project to All India Institute of Medical Science, Delhi, and they correlated this thing Correct. with the migraine. So in fact he came with a few patients who had migraine. When we used to palpate in the right hypochondrium, they used to pain. Yes, which is still a part of my practice. Definitely. एंड हम लोग तो उसको सर जैसे गैस्ट्रो सिम्टम्स बहुत होते हैं, एंड आजकल मैं भी पढ़ रही थी, a lot of cases with migraine have extreme B12 deficiencies, D12 deficiencies, iron deficiency, matter. These are not triggers again. हाँ, Which is causing trigeminal nerve excitation and causing all those cascade. So these all are triggers, deficiency of any particular thing. So they are coming. So that's why we said, like these are all things which has to be corrected first, rather than putting patient directly on a prophylaxis, long term prophylaxis. सर जैसे माइग्रेन क्या होता है, मारता तो किसी को नहीं है, बट बेसिकली इट अफेक्ट्स सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड बिलियंस में लोगों को होने लग गया है, एंड कुछ टॉप 5 बीमारियों में आता है कि इसके वजह से आपकी डिसेबिलिटी लेवल इतना है ये, एंड लड़कियां तो बहुत परेशान, work hours loss was इट हैज अ बिग इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पीपल, एंड स्पेशली जितनी डेवलप कंट्रीज हैं वो माइग्रेन को मतलब चाहती हो ठीक हो,
चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूंगी सर, कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन, हम्म। एक ये वर्ड्स है बड़े यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हमें अपना सेरोटोनिन लेवल अच्छा करना चाहिए, या स्ट्रेस को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बोलने के लिए कॉर्टिसोल बहुत बढ़ा हुआ है, इसको कैसे समझेगा आम इंसान? अ, देखो बेसिकली होता है कि हमारी देखो हमारी जो भी हमारे जो इसमें स्ट्रेस में एक हमारी आपने सुना होगा कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस होती है पूरी पूरी, दे ऑल कंट्रोल दिस यस। थिंग्स। सो कॉर्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द बॉडी। Cortisol is very important hormone, but then excess of everything bad. सर So कॉर्टिसोल के अच्छे पार्ट समझने चाहिए पहले हमें। cortisol is life-saving Yeah. thing. Cortisol is a life-saving thing. Like Correct. cortisol, you need cortisol for everything. But excess of, I said, the excess of cortisol is again a dangerous thing. So what happens when you are in a state of stress most of the time? The cortisol level is high. Cortisol level high causes your blood sugar raises. There is hardening of the arteries because they are in a state of fight every time. So cortisol is important for the life, but excess of cortisol causes a lot of body organ damage. So इसलिए कहते हैं कि जो जिनका हमेशा कहते हैं आप शांत रहो भाई, क्यों तुम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? ब्लड प्रेशर बिकॉज cortisol level is increasing. So calm mind, that is important. So cortisol level is important, but cortisol level is also harmful if it is given for very long period. कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग आपके हेडेक के या जॉइंट के पेन के जो लोग लेके आते हैं, they are on long term steroids. करेक्ट। So when you're giving patient external steroid, their own axis gets depressed. It will not produce indigenous cortical. And when you stop them, there is a rebound, excessive rebound of diseases. So cortisol, इसीलिए cortisol आपने देखा कि बहुत लंबे समय तक हमने देखते हैं, and because you need that axis to be live, जो हमारी normal अपनी indigenous production है late. If you give from external, it will not produce any cortisol. It will shut down. The shop will go shut down. तो इसलिए cortisol जो हम लोग जो भी supplement करते हैं, it has to be given very judiciously for a limited period of time. पहले तो सुपरविजन, देन उसको टेपर करते Yeah, हैं। taper, tab, suddenly you can. ये कहते हैं कि अगर आप cortisol या cortisol जो भी आप दे रहे हैं, अगर less than a week if you are giving, you can stop suddenly. But if you are giving for a very long period, then it has to be tapered down over a period of weeks or months. एंड सर सेरोटोनिन के बारे में अगर समझ सेरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन भी उसको मैंने बताया कि सेरोटोनिन अगर इज अ गुड हार्मोन, अगर आपको सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो आपको बेसिकली आपका, तभी आपने देखा होगा कि आपका जो पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा आपका। सो सेरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पैथोफिजियोलॉजी, इन द माइग्रेन पैथोफिजियोलॉजी, एंड इसीलिए इनकी प्रोफाइलैक्सिस में SSRI जो है तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये भैया उनका रोल इसमें आया। तो सेरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, और अगर उसका रोल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसीलिए मेडिकल पार्ट में उसकी ये दवाइयाँ आई। एंड सर सेरोटोनिन तो बेसिकली आपकी जो हैबिट्स हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसको डिटरमाइन करता है सारा। एंड अगर हम लिटरेचर भी देखते हैं तो 90% सेरोटोनिन तो हमारा गट ही बनाता है। तो बेसिकली अगर आपकी बातें भी मैं समझूं, और जैसे मैं लोगों को देखती हूँ क्लिनिक में, मतलब हमारी आदतें इतनी ख़राब हो गई, हमें लगता है कि कोई जादू या कोई दवाई हमें ठीक कर देगी। एंड जैसे मैं बता रही थी आपके, मैं लेक्चर अक्सर सुनती रहती हूँ, एंड आपका बहुत फोकस रहता है टू मेक द यूथ वेरी अवेयर अबाउट इट, Right. कि कैसे आपको कुछ चेंजेस करने हैं जिससे आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छा रहे, मतलब उसे समझाने के लिए, लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। सो सर तो लाइफस्टाइल तो है ही है, दिस इज, बट देन सी लाइफस्टाइल एंड योर स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली ब्रेन हेल्थ, फॉर एवरी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। फॉर हेल्थ दिस इंपॉर्टेंट। बट सम सी वन थिंग इज, कहना और करने में थोड़ा डिफरेंस आता है। द वे वी हैव डेवलप्ड आवर सोसाइटी नाउ, यू कैन नॉट डू, सी द वे वी हैव डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज। अब अगर आप स्विट्जरलैंड में चले तो आराम से 6 बजे डिनर करके आराम से, दे हैव नो हरी, न उनको कहीं भागने की जल्दी है न कुछ है। इंडिया में एक कहावत है ना कि हर आदमी को जल्दी है, भाग रहा है लेकिन टाइम पे कोई नहीं पहुंचता, करेक्ट। है ना? तो वी आर इन दैट कंट्री, वी आर इन टोटल कंफ्यूजन। सो दिस इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ बढ़ी है। और हमारी ओवरऑल लॉन्गेविटी बढ़ी है बिकॉज वी हैव कंट्रोल्ड दोज इन्फेक्शियस डिजीजेस। हाँ। ये नहीं कि मतलब कि लेकिन हमारे साथ में साइकोसोमेटिक डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द एज, मतलब लंबा इंसान जी रहा है लेकिन बीमार जी रहा है। बीमार ये बट देन, बट चलो ठीक है, फाइन भाई, अगर आप लंबे हो गए तो आपको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी, देयर इज नो डाउट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, लेकिन ठीक है लॉन्गेविटी बढ़ी है, देयर इज नो डाउट, बट देन अगेन नाउ देयर आर अदर साइकोसोमेटिक डिजीज आर कमिंग। तो ये आपको कैसे कंट्रोल करनी, लाइफ स्टाइल इज इंपॉर्टेंट। फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है बॉडी के लिए, भाई कि व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ रोल टू प्ले, इट हैज़ अ वेरी रोल टू प्ले। एंड अब वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, अच्छा आप बताओ, हम स्कूल जाते हैं, क्या हमारे स्कूल में कोई इस चीज़ पे ध्यान, हमारे को फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो मैथ्स मैंने जो पढ़ी हुई 8th मेरे कहीं ज़िंदगी में काम नहीं आनी, पर क्या हम पढ़ाते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए,
हमें योगा करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ का ध्यान रखना चाहिए, हमें खाने में क्या खाना है, ये कहीं किसी स्कूल में नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक पीरियड एटलीस्ट आपकी लाइफस्टाइल का होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म। जैसे आयुर्वेद का सर जो मेन चैप्टर है दिनचर्या, दिनचर्या, आपका जो अब दे आपका हाउ यू लिव थ्रूआउट द डे, Yeah. सर उसी से मैं आऊंगी जो आपने बहुत राइटली बोला कि सबको भागने की जल्दी है, लेकिन कोई टाइम पे नहीं पहुंच रहा, कोई आराम नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल रिकवरी में भले ही वो माइग्रेन हो, जैसे पैनक्राइटिस में देखती हो, कोई भी बीमारी पोस्ट सर्जरी, रेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। And- कहते हैं ना, आदमी जब सोता है हाँ, तब उसकी रिजुविनेशन होती है, रिपेयर रिजुविनेशन सारी चीजें तभी होती है, लेकिन रेस्ट को लेकर एक वो बना है कि हम रेस्ट नहीं ले सकते। मतलब कहीं ना कहीं जब इंसान आजकल ब्रेक लेता है, लाइक हम लोग एक देखो Race सर, लग- साइंटिफिकली हमें कहते हैं, साइंटिफिकली हम लोगों से बोलते हैं कि 6 to 7 आवर्स स्लीप इन 24 आवर्स इज इंपॉर्टेंट, एंड स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। देखो, जो भी मैं फिर हम अगर थर्ड पावर भगवान पे आए, ऊपर वाले पे आए, उससे बनाया तो यही ना, रात और दिन इसलिए बनाया कि वो रात में रेस्ट करो, दिन में काम करो। मे बी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इज द टाइम व्हेन रीजनरेशन स्टार्ट्स। उसमें स्लीप पे देयर इज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो स्लीप इज द टाइम व्हेन द रिपेयर स्टार्ट्स, एवरीथिंग सी, कोई भी मशीन आप 24 घंटे, जब व्हेन इट इज रेस्टिंग दैट टाइम उसको ऑयलिंग हो रही, सब चीज हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनीवन लाइफ इज स्लीप। एंड देखो ना यार, आप, मैं नहीं कह सकता हूँ कि 50%, पर प्रोबब्ली 40% ऑफ योर लाइफ टाइम इज योर स्लीपिंग ओनली। 35 to 40% of your years in life you are sleeping. So it is so important for this thing. और उसके लिए आपकी क्वालिटी स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर हाउ डज लाइक हम लोग के सबके हाथ में तो बैंड्स हैं या कोई कोई हम ट्रैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए व्हाट आर दोस मार्कर, लाइक आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हम कैसे मानते होंगे कि अच्छे से सोए हैं हम, कंप्लीट स्लीप है या स्लीप डिप्रिवेशन नहीं है? मतलब आजकल तो ये कॉमन वर्ड्स बन गए हैं। लाइक हाउ वुड वन असेस कि आप अच्छे से सोए हो, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड स्लीप, उसके क्या क्या मतलब पैटर्न्स होते हैं, कब आपको डीप स्लीप आती है? देखो उस साइंटिफिक तो मतलब बेसिकली, देखो मैंने पहले आपको बताया कि स्लीप आवर्स, देखो कहने को तो आजकल आई डोंट नो, हमारे पीएम साहब भी कहते हैं मैं 3 घंटे सोता हूँ, विच आई डोंट नो दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, इट शुड बी डन scientifically. I don't think I advise anybody to do that. There were period when I was away for 3 days, 4 days because of my clinical work week with Thani ward में हमें काम करता है, different thing, but then routinely you try to sleep for 6 to 7 hours if you want to fully repair things. डिफरेंट साइकिल्स हैं और साइंटिफिकली लोगों के लिए रैपिड आई मूवमेंट्स एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स हैं, देयर एक्टिंग, बट 80% ऑफ आवर स्लीप, 70 to 80% ऑफ स्लीप इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हम लोग सोते हैं। तो उसमें डिफरेंट वो उनके फेजेस होते हैं, साइंटिफिकली भी इसमें किस में सपने आएंगे, किस में सपने नहीं आएंगे, समथिंग है। फॉर अ ले मैन, इफ ही इज गेटिंग फ्रेश इन द मॉर्निंग मीन्स इज स्लीप वेल। इफ इज अ ग्रॉगी इन द मॉर्निंग इज Cranky. सर भारी है, मन नहीं कर रहा है, कैसे हो रहा है, मींस इज डिड नॉट स्लीप। एंड सर एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमनली है कि किसी को नींद नहीं आती है आजकल। जिसको नींद नहीं आती है उसके कारण तो मतलब मेरा कहना, एक तो होता है ऑर्गेनिक कारण। ऑर्गेनिक कारण क्या कि जैसे ऑब्वियसली स्ट्रेस वन थिंग, सपोज माना कि कोई देखो, जैसे आप बेड पे गए, कोई भी कारण है, किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई, देयर समथिंग एंड ही विल कीप ऑन थिंकिंग, देयर समथिंग व्हिच हैज कम, किसी को बड़ा लोन हो गया, वो रात तो सोचता रहे, ही कैन नॉट स्लीप। excessive thought will make you cannot go to sleep, and this is common thing जो हर किसी के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ temporarily होता है। There are sleep disorder also where the patient is not able to sleep and where there are medication which regulate their sleep. करेक्ट। Then there are other things, अब अगर आपको जो है आप ऑक्यूपाइड हो, आप रात भर टीवी देख रहे हो, आप ये कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें कि स्लीप डिसऑर्डर इन इटसेल्फ इज अ बिग इशू, सब्जेक्ट। बिग सब्जेक्ट। बट आई नो कि अगर आप, इफ यू आर वर्किंग वेल, इफ योर माइंड इज फाइन, कहते हैं ना, किसी ने कहा यार कि अगर आप कई काम चैन से कैसे सो पाओ, किसी मैंने सुन रहा था, किसी ने कहा कि भाई अगर आप दिन भर अपने ऑफिस में घूस ले रहे हो, रात में आपको चैन की नींद कहाँ से आ जाएगी? करेक्ट। नहीं आएगी ना, मतलब नहीं आती ना, यू थिंक यार कि मुझे पकड़ना है, मुझे कहीं ना, सो यू हैव टू डू समथिंग गुड सो दे आर स्लीपिंग। अगर आप कर्म अच्छे हैं तो आपके नींद अच्छी आएगी, देयर इज नो डाउट, ठीक है। बट सम पीपल हैव अ, डिस्पाइट देयर, आई एम नॉट सेइंग कि सब बेचारे जिनको नींद खराब है ऊपर, दे हैव अ स्लीप डिसऑर्डर, सो दे शुड कंसल्ट। आजकल कई चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है, एक ओएसए होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने, जिसमें कहते हैं स्लीप अपने जो होता है, जिसमें खराटे लेते हैं लोग, तो लोग मशीन सीपैप या CPAP, तो उसमें नहीं, you have to do a sleep study. That is all again very, and that is a very very dreaded disease,
लोग उनको कहते थे कि यार खराटे ले रहे हैं, बहुत घोड़े की चैन की नहीं सुनो, नो नो नो, snoring is fine is snoring, but then when there's obstructed sleeping where the patient sleeps like that, मतलब it can be dangerous. it can dangerous, you can die in the sleep. And then again I said the sleep disorder, ये जो अपनी आना sleep apnea जो में थे, and this is now we consider the disease which produces hypertension, diabetes, obesity. तो एक वो भी है. तो sleep का आपको होना चाहिए, but if you are not getting proper sleep, you see that apparently there is no stress, go and consult a doctor. If there is stress, then definitely you have to consult कि भाई आपको underlying stress क्या है, उसके लिए वो आपको देंगे. कुछ होते हैं स्लीप रेगुलेटेड डिजीज, उनमें दवाइयाँ होती हैं, कुछ एंटी एंग्जाइटी वाली होती है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट थे, इनका कॉम्बिनेशन देके देते हैं, एंड देन ग्रेजुअली यू टेक देम ऑफ. मतलब इट इज नॉट अ लाइफ. नो यू हैव टू टेक देम ऑफ, यू हैव टू टेक देम. सर एक और चीज़ था इसमें, एक मॉडर्न फिनोमेना से हम समझते हैं, इसमें मैंने आपसे बात की कि ब्रेन फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है. व्हाट इज ब्रेन फॉग, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट मेडिकली? इट इज अ कॉमन कंप्लेंट पीपल कम टू, लाइक कि क्या अच्छा, लोग जैसे लोग कहते हैं कि मेरा मुझे मैं कई बार ना मैं समझ जाता क्या करूँ, मुझे करने जाता हूँ मैं एकदम वो लगता है अरे मैं क्या करने आया था. अच्छा, उसमें मुझे लग रहा है कि ब्रेन एक तो ऑर्गेनिक ब्रेन फॉग, व्हेन देयर इज ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, किसी को एन्सेफेलोपैथी हो, एन्सेफेलाइटिस, ऑब्वियसली दे विल हैव ऑल दोस. बट सपोज अ नॉर्मल पर्सन हु इज गोइंग टू मार्केट एंड सडनली फॉरगेट्स व्हाट आई वाज कम टू मार्केट, या मैंने राइट मुड़ना था लेफ्ट मुड़ना था. एमनीजिया हो गया सर. No, amnesia is a different. Amnesia means forgetting. फॉरगेटिंग द थिंग, हाँ, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. Short term और long term से हाँ. होता है. Amnesia is different thing. हाँ. Fog is sudden confusion for आप नीचे के गाड़ी में, फिर आप ऊपर आ गए, फिर आप भूल गए मैं ऊपर आई क्या थी. So there's something sudden transient confusion for a particular thing. When it's a long term, then obviously your organ disease है. ठीक है. तो brain, अब उसका रीजन यार बहुत सारे रीजन होते हैं कि मे बी दैट यू आर ओवर ऑक्यूपाइड. मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान मेरा पेशेंट पे. व्हाट यू आस्क्ड मी, आई डिड नॉट इवन रजिस्टर दैट. या यू आर नॉट प्रोसेसिंग इट. आई एम नॉट रजिस्टर्ड. तो मेरे आगे लिए आई डिड नॉट प्रोसेस दैट, मैंने स्टोर नहीं करा जी. और आजकल आपने बहुत यंग लोग आते हैं 30 साल 35 साल 40 में आते हैं, सर हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है, हम भूल जाते हैं चीज़. तो मैंने उनसे कहा कि ऑब्वियसली अनलाइकली दैट योर डिमेंशिया, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ योर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम. और मैं उन लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने भी देखा कई बार जब हम लोगों को एग्जाम होते थे, तो जब एग्जाम हॉल के बाहर जो हम पढ़ते थे वो लाइन हम बार बार रिपीट करते थे. हम स्टार्ट करते थे एक लाइन से, और बाय द टाइम हम एंड पहुंचते फिर भूल जाते थे हम शुरू कहाँ से करें. करेक्ट. क्योंकि हमारा दिमाग कहीं, हमारा अटेंशन कहीं और है. मतलब उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं. यू आर नॉट रजिस्टिंग, यू आर नॉट एट पीस ऑफ माइंड. तो एक टर्म हम यूज करते हैं मल्टीटास्किंग. इट इज सेलिब्रेटेड जनरली, लोग बहुत. मल्टीटास्किंग मींस सपोज आई एम सीइंग अ पेशेंट, हाँ. पेशेंट ने मुझे कंप्लेंट बताई, तो बाय द टाइम आई गेट अ फोन कॉल, मैंने फोन कॉल उठाया, फिर आपने क्या बताया था मुझे, हाँ. आई डिड नॉट रजिस्टर दैट. तो मल्टीटास्किंग इज अ रियल प्रॉब्लम. इट्स नॉट एक्चुअल मेमोरी, इट्स अ मल्टीटास्किंग, हैविंग योर माइंड एट मल्टीपल प्लेसेस, वर्किंग समवेयर, काम कहीं है ध्यान कहीं है. यू विल नेवर रजिस्टर दैट थिंग. और उसका एग्जांपल पता नहीं, वी हैव ऑब्जर्व दैट कि एग्जाम में जिस दिन आप एग्जाम के कमरे के बाहर जो पढ़ो वो कभी याद होता ही नहीं था. ये तो फैक्ट है, मेरे को बिल्कुल 100% ट्रू. एंड आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ दैट लाइन एंड सडनली आई हैव टू स्टार्ट अगेन. कहाँ से शुरू कर दिया मैंने क्या पढ़ा था जी. बिकॉज आई एम इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, मैं उस चीज को रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ. सो दिस आर नोन एज मल्टीटास्किंग attention concentration deficit. It's not actually memory. मेमोरी की प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली. जैसे डिमेंशिया, अब डिमेंशिया भी भाई एक प्राइमरी डिमेंशिया होता है जिसमें आपने अल्जाइमर्स आजकल बात कर. तो शिका होता है क्या कि डिमेंशिया को हम लोग ये कहते हैं सेनाइल डिमेंशिया. पहले ज़माने में कहते थे कि यार आप लोग यंग हो पता नहीं, हम लोग कहते थे हमें 60 साल का वो सटिया वैसा भी है. हाँ बोला मतलब बोलते ही है. सटिया मीन्स बाय 60 टाइम ही स्टार्टेड डिजेनरेटिंग, ही स्टार्टेड फॉरगेट. अबे छोटी चीज़ें भूल गया, छोटी चीज़ भूल गया, सटिया वैसा. सो दैट स्टार्ट्स, देयर इज नो डाउट इट विल. अच्छा, एक और मैंने आपको शायद एक फैक्ट और ब्रेन नहीं बताया. ब्रेन सेल्स दे नेवर रीजनरेट. ये पता द ब्रेन द नर्व जो हमारे जो नर्व सेल्स होती हैं, ग्लास जो ग्लाइल्स होती है, स्किन आप काट दो इट विल रीजनरेट, लीवर आप आधा ले लो रीजनरेट. करेक्ट. बट नेवर इट वंस स्टार्ट डाइंग इट विल डाई. इट विल. सो 5 साल तक 6 साल तक जितने में न्यूरॉन्स बनने वो बन जाते हैं. अब आपको यार ऐसे कैसे होता है कि आप बाद में इंटेलिजेंट ज़्यादा हो रहे हैं, बाद में नॉलेज, साइनेप्सिस ज़्यादा बन रहे हैं, कनेक्शन मतलब साइनेप्सिस आर ऑलरेडी देयर बट दे आर इनएक्टिव. आप पढ़ेंगे कुछ, आप नॉलेज ही नहीं गेन करो, चुपचाप बैठे हुए.
The moment you start reading, and they will start synaptic. So your knowledge will increase, your wisdom will increase, your thing. But your brain volume will not increase. सोचो 5 साल 6 साल के बाद आपकी ब्रेन सेल बनना शुरू हो जाती हैं एंड इट विल नेवर रीजन. सो योर वॉल्यूम विल बिकम ग्रेजुअली. अगर आप 40 साल की उम्र में आपका या 30 साल की उम्र में अगर आपका ब्रेन का वेट 1 किलो 500 ग्राम है, तो बाय द टाइम यू रीच 70 ईयर्स इट विल बी 1 किलो 400 ग्राम. श्रिंक होता है. क्यों होता है ना, ब्रेन सेल्स खत्म हो रही है, दे आर नॉट रिजनरेटिंग. द ओनली न्यूरल टिश्यू विच इज नोन टू रीजनरेट इज द ऑल्फैक्टरी सेल्स हियर. उनको कई बार कहते हैं रिजनरेट. आपने देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, वो कभी ठीक नहीं होती क्योंकि रिजनरेशन ही नहीं हुआ. इट इज वेयर इट इज. इट इज सो देयर इज नीड. तो नॉलेज के लिए अब उसके लिए थोड़ा मैं आई थिंक मैं हम लोग कहते थे कि भाई कि जो है वो आपने भी शायद कि हम लोग ब्रेन को एक्टिव करने के लिए पहाड़े उल्टे याद करते थे. हाँ. कुछ होता था पहले के. Yeah, हाँ हाँ. to make all those dormant lying synapses to start acting. You are not making new cells, you are activating those new cells by acquiring knowledge. So, but तो अगर इसीलिए अल्जाइमर्स में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा कम होता है क्योंकि उनके साइनेप्सिस ज़्यादा हैं. अल्जाइमर से क्या बोलेगी, भूलने की बीमारी है, तो भूलोगे तभी ना. अगर आपके इतना ज़्यादा आपका रिजर्व ऊपर याद करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए ठीक है. तो एक और सेंटेंस मैं यूज़ करता हूँ कि द फूड ऑफ ब्रेन इज रीडिंग knowledge. नॉलेज. फूड ऑफ ब्रेन इज नॉलेज. एक्चुअली फूड तो ग्लूकोज है. हम्म. But otherwise, because you want to be intellectually active also and alive also, so it is knowledge. If you read more, you have more synapses to work there. You have more, your brain will work more fastly. Your decision will be आपके रिफ्लेक्सेस बेटर होते हैं. everything will better. And ये भी स्टडी करेंगे कि आप ये काम करोगे किसी 2 बच्चों को जो डेवलपिंग एज में 2 साल 3 एक बच्चे को उस कमरे में बंद कर दिए जहाँ पे कुछ नहीं है, और एक बच्चे को उस कमरे में बंद कर दिए जहाँ पे यू हैव पिक्चर्स, यू हैव प्ले टॉयज टू प्ले, यू हैव टीवी और समथिंग. सो सी द डेवलपमेंट दैट ब्रेन. So you need inputs इनपुट्स. in the brain. You need inputs in the brain to develop brain. Otherwise it will go dormant. और कुछ करने को नहीं हो तो कुछ नहीं करेगा. So you need inputs. Input knowledge is the best thing. Obviously you see things. लोग कहते हैं भाई आपको बीच-बीच में घूमना चाहिए. क्यों घूमना चाहिए? You get new inputs in the brain. तो ब्रेन के लिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड. आई कैन नॉट से देखो एक प्राइमरी डिमेंशिया होता है जिसमें अल्जाइमर्स होगी, उसमें बात नहीं. बट अदरवाइज जो सेनाइल डिमेंशिया को आप प्रिवेंट कर सकती है बाय नॉलेज. सर इससे बस आई एम जस्ट क्यूरियस कि आने वाला समय वी आर इन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ओवरलोड, टू मच. मतलब इतना कंज्यूम कर रहे हैं, शॉर्ट कंटेंट बहुत देखते रहते हैं. अक्सर हम देखते हैं कि 5 मतलब 2 मिनट की रील्स हैं, और रात को कई बार हम सभी की आदत हो गई है कि एक देखे तो कि 2 घंटे हो गए. मतलब अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. देखो मैं बताऊँ क्या है कि पर पर्सन सपोज माना इफ आई से कि भाई मैं प्रोफेशनली मैं ठीक हूँ, मैं आई हैव डन माय रीजनल वर्क एंड आई एम सेटल्ड. सो इफ आई यूज मोबाइल इट विल अफेक्ट मी लेस इन वाई आई एम सेइंग. बिकॉज सी मैं मेरे को पता है कि भाई ठीक है कि आई कैन नॉट बी विद द मोबाइल बिकॉज आई हैव टू वर्क आल्सो, आई हैव टू Correct. दैट. बट फॉर अ ग्रोइंग एज, हम्म. for a growing brain, it is a blessing also, it is a poison also. देखो आजकल बिना मोबाइल के आपको भी आदमी यू वांट टू बी इन कांटेक्ट, लेकिन साथ में नॉलेज भी आपको कुछ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं. बट द प्रॉब्लम इज कि प्रोबब्ली नाउ दैट इट हैज गॉन अदर वे. यू आर एक्वायरिंग 10% नॉलेज, यू आर एक्वायरिंग 90% न्यूसेंस बाय मोबाइल. एंड इट इज एडिक्शन. और इसके लिए हमारे को सोसाइटी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या होता है देखो, अब आपने देखा आई थिंक 2 कंट्रीज आई नो वेयर दे हैव ये रूल उन्होंने लिया है. ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली हुआ है मेरे ख्याल से. हो गया फॉर लेस देन 18 years you cannot use social media. And this is very important I'm telling you. इसका एक तो आपका माइंड फॉग, आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज कम होना, आपके थॉट प्रोसेस चले जाना. यू विल नॉट थिंक ऑन योर ओन. अगर सपोज माना आपको यहाँ पे से आपको पता करना है कि वहाँ से क्या था, गूगल में डालते हो यहाँ से क्या थे. सो ये आपके ब्रेन की तो एक्सरसाइज हो ही नहीं रही ना. करेक्ट. नहीं हो रही. सो इट इज समथिंग, बट इट इज हेल्पिंग अस आल्सो एंड इट इज हेल्पिंग सोसाइटी इन अदर वे आल्सो बाय गिविंग यू साइंटिफिक नॉलेज, बाय हेल्पिंग यू इन अ क्राइसिस. अगर कल का एक्सीडेंट हुआ तो मोबाइल ही तो कि भाई यहाँ पे आ जाए. हाँ सही बात है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो. इसका एक और एस्पेक्ट है मोबाइल का, रेडिएशन विच आर नॉट सीइंग राइट नाउ, बट इट विल अफेक्ट आई थिंक. क्योंकि बहुत बार मैंने देखा कि अगर बहुत देर तक आप कान पे लगा के तो कान आपका लाल हो जाता है. अगर बहुत देर तक आप बात करिए तो आपकी हीट से आपका कान बिल्कुल जो पेन करने लगता है. इट हैज अ रेडिएशन व्हिच राइट नाउ प्रोबब्ली वी आर अवॉइडिंग टू टॉक ऑन दैट. वी आर जस्ट नॉट बॉदर्ड. नहीं हम सोच वी आर नॉट इसलिए नहीं टॉक कर रहे हैं ना कि हमें पता है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते. साइंटिस्ट भी चुप है, प्लस मार्केटिंग. यार ये बताओ,
हम सबको पता है सिगरेट किल्स, करेक्ट। टोबैको किल्स, बट सरकार उसको उनको फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कर देती है? कमर्शियल एंगल। There are so many things which are running in our country by commercial But angle. all over the world for that matter, मतलब it is a need also and It is a need. It is the mobile is a need, but I think a cigarette is not a need. करेक्ट। But उनका अपना उनमें एक कमर्शियल एंगल है तो अपना वो ठीक है सर, लास्ट में 2 चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी कि हमारे जो टाइम है एआई का, जब आपने कहा हम इतनी इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम कर रहे हैं और जैसे-जैसे हर चीज़ अब चैट जीपीटी है, इतने सारे टूल्स बन गए हैं। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जो एक्चुअल ब्रेन है, इसका क्या फ़ंक्शन, इसका क्या रेलेवेंस रह जाएगा? विल वी सी मोर डीजनरेशन, विल सी ब्रेन रॉट? व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द ब्रेन हेल्थ और जो आपने बातें बताई हैं, क्या होगा? आपको क्या लगता है? लाइक वेयर डू यू सी ऑल ऑफ अस हेडिंग टू? अगेन एआई के लिए बारे में जैसे मतलब कॉमन आपने सुना था कि एआई वाज अ फैंटास्टिक टूल बट नाउ पीपल आर स्टार्टिंग फियरिंग। लोगों में डर डर शुरू हो गया है एआई के बारे में, द वे इट इज़ नाउ डूइंग इन अ सोशल और डिजिटल लाइफ। एआई इज गुड इन फ्यू एस्पेक्ट, लाइक मेडिकल एस्पेक्ट में बहुत अच्छा था हमारा। जैसे आपने देखा होगा कि आपको एमआरआई में डायग्नोसिस करनी है एमआरआई की पिक्चर में, a radiologist can only read one MRI, probably will have experience of 1000 MRI. On the basis of that 1000 MRI, he will give his interpretation. Hmm. AI can read lakhs and millions of MRI in us. And so in those places where there's an imaginary, they are definitely going to help you. CT scan, MRI, giving a diagnosis. It is good for human being. There's no doubt. अब हो क्या रहा है, जैसे चाइना में उन्होंने क्या करा, चाइना में उन्होंने कहा भी डॉक्टर्स तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो दे है वो उन्होंने एक पॉड टाइप के बना दिए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो किसी शॉपिंग मॉल में लगे। यू गो देयर एंड यू फीड योर सिम्टम्स एंड दे विल टेक योर ब्लड प्रेशर सैंपल समथिंग एंड दे विल यू प्रोवाइड डायग्नोस और प्रोवाइड मेडिकेशन ऑल्सो। वो कहते हैं डॉक्टर्स ने ये करना शुरू कर दिया। सो शिखा, आई एम नॉट रियली श्योर कि दिस इज गोइंग टू इन अ गुड डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन अ वेरी बैड डायरेक्शन। बिकॉज़ देयर सो मेनी थिंग्स जो क्लिनिकल होती हैं आप नहीं बता सकते हो। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल भी हम भी अपने जमरे जूनियर डॉक्टर्स हमसे कहते हैं यार देखो मशीनरी है, but human touch is important. History is very important. We cannot be totally mechanical. But I think things are changing. I'm not sure, but हो सकता है कि पीछे अभी एलन मस्क ने कहा था कि अब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिनों बाद हाँ, मैंने पढ़ा to था। diagnose things. जी, जी। We have to see. But AI was good at least in medical science. But in other spirit, it is harming people. मतलब ब्रेन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है उसका कि जैसे हमें पहले ऐसे लिखना होता, हमें सोचने को मजबूर होते थे, इंसान सोचते थे। अभी कुछ बट लिख रहा अब प्रॉब्लम ये है ना कि अब वही तो कह रहा हूँ कि अब देखो ऐसे का रेलेवेंस इसलिए नहीं रहेगा, लेकिन प्रोबब्ली नाउ थिंग्स आर गोइंग अदर वे। सी है। अब इस बहुत से जब जैसे माना तुम जकरबर्ग को देख लो जो फेसबुक वाला, उसने जिंदगी में शायद ऐसे लिखा नहीं का, बट देन ही इज डूइंग अदर थिंग्स करेक्ट। इन अदर थिंग्स इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो। तो सो प्रोबब्ली वी विल इवॉल्व, विल इवॉल्व। विल स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स हम्म। rather than reading history and doing all those things. And human brain की importance will never go down. It is never going to go down. And this comes क्योंकि even after that AI, हाँ, there is a human brain. करेक्ट। So कमिंग फ्रॉम अ ब्रेन डॉक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। human brain will always remain. But जिन्होंने उसको बनाया है, ब्रेन जिस ब्रेन ने AI को बनाया, वो probably उसको disable करेगा the moment they start feeling there's so many side effects. सर एज मच एआई टेक्नोलॉजी हम सबको बड़ा आइसोलेट भी कर रही है एंड यू बीन अ वेरी सोशल पर्सन, आई थिंक दैट्स समथिंग वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम यू। सर सोशल स्किल्स का हमारी हेल्थ पे लाइक सोशल वेलबीइंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, मैं पर्सनली बहुत मानती हूँ। Very important, very important. सो हाउ डू यू मतलब लुक एट इट एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली एंजाइटी है आजकल बहुत लोग को, मतलब अकेला रहना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, तो उस पर सोशल हेल्थ का क्या इम्पैक्ट है एंड हाउ टू नॉट ओवर डू इट, क्योंकि आजकल सोशल कंपल्जन भी हो गया कि सैटरडे तो बाहर जाना ही जाना है। वेयर इज दैट थिन लाइन दैट पीपल कैन एक्चुअली प्रैक्टिस? I think social life is very important, very important, and you have to draw a limit for yourself. I think you have to draw a limit, and we have seen the people who socialize more, who have more friends, they live more healthy life than a person who is secluded. एंड आल्सो कंटेंटमेंट होता है उनके अंदर। कंटेंट होता है। जैसे ऑटो कंटेंट बता रहा हूँ कि बीच में एक स्टडी आई थी कि जो लोग वाइन, वेस्ट में उन्होंने देखा था कि जो वाइन ड्रिंकर हैं, अल्कोहल जो मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, they live more than the people who do not drink. So that is. So obviously people start here alcohol अच्छी बात है, moderation. But then there was another aspect. They say कि it is not alcohol. It is your company with whom you are socializing. That is helping you actually.
तो बेसिकली सोशल इम्पैक्ट की बात थी। social impact rather than alcohol, because you're sitting with a friend, you're laughing, all those things, all stress is gone now. Hmm. So it is helpful, definitely, I can say, there's no doubt. So that's why we are called social animal. We are social animal. Right. We are called social animal. So life is very important. Social life is important. The person who are secluded, who are alone, you see, they are mostly depressed. सो अब वहाँ पे न्यूजीलैंड में ये चीज़ है, जैसे वहाँ पे पेरेंट्स हैं किसी के अकेले रहते हैं, तो गवर्नमेंट डज, दे टेक देम आउट, उनको लेके जाते हैं और उनकी गैदरिंग में उनको मिलाना जुलाना, बिकॉज दे थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम. अगर वो घर में चाहे उनके खाना रोज भिजा रहे हैं, उनके डॉक्टर भिजा रहे हैं, बट देन दे नो दे आर गोइंग टू प्रॉब्लम, तो दे वांट देम टू सोशलाइज. तो दिस इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक देम ऑन पिकनिक एवरी ट्वाइस अ वीक. तो उनका जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है उसको मेंटेन करना है. That's important. So, sir, lastly, we are almost at the end of the discussion for the day. Sir, 5 ऐसी चीज़ें जो मैं हमेशा पूछती हूँ. What would you advise for people to stay mentally healthy, disease free in today's time? आपकी तरफ से क्या वो 5 टिप्स आप बोलते हैं लोगों की जरूर करें? Sleep well, be happy. This is important. Be happy. Eat healthy food if you can do. I think my family is going to watch this. They are saying my life is so hectic. See, I can say this. See, if I have something which I can pass on to people, there's no harm. See, I cannot do it because of my compulsions, because my lunch time, dinner times are there. आपने कल ही बताया कि मैं सुबह उठ के सोए के लिए जाना पड़ेगा. But for a public, I think they have to understand that you have to sleep well. Do not take stress is possible. Read, acquire knowledge. Have a healthy and work out. If you can work out, do physical activity is very important. And physical activity is important. Why I'm saying that, because I have a time constraint. Probably it's my only problem. अगर आप कोई कहीं पे टाइम निकाल सकते हो, but then what I do for my कि मैं क्या करता हूँ कि हमारा एक 4-story हॉस्पिटल है, then I try not to take lift. That is the only contribution of my side. I climb my stairs and come, and 3-4 times I do. Physical activity is very important. Physical activity is very important. So if you do that, I think you're going to live a healthy life. I think किसी से भी बात होती है तो अगर जब हम 5 टिप्स पे आते हैं, आई थिंक मोरलेस सबके यही जवाब होते हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड यही सेवियर है हम सबके लिए. Okay, sir. तो anything else, sir, that you would want to I share? think we have covered most of things. And आपका क्योंकि माइग्रेन में आपका थोड़ा पर्सनल एक इंटरेस्ट भी है, एंड आप that part, diet, lifestyle is something very important which you should pass on to the public and to a patient. Because that is something very important for headache, general headaches, migraine specific, and if you adopt those things, probably you will not have to take the medicine now. Yes, तो मेरा तो ट्रीटमेंट का जो पिलर होता है हमेशा इट इज आहार विहार औषधि. इट इज नेवर द अदर वे अराउंड. तो हम कहते हैं पहले डाइट, देन लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन. इवन टुडे सर, जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आएंगे माइग्रेन के लिए, बोलेंगे पहले डाइट चेंज करो. शिखा में मेरा पता खुद हाँ. आई एम अ मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी डॉक्टर. सही बता रहा हूँ. मैं कहता हूँ कि अगर बेस्ट डॉक्टर वो नहीं जो लंबी चौड़ी दवाई लिखता है, जी. बेस्ट डॉक्टर जो सबसे कम दवाई लिखता है. जी. क्योंकि हर बीमारी में रोल है लाइफस्टाइल का. जी. अगर पहले दिन मेरे पास पेशेंट को 140/90 लेके अगर बीपी लेके आता है, दो आई एम नॉट अ फिजिशियन, अगर पहले दिन फिजिशियन एमडी और पहले दिन उसको एंटी हाइपरटेंसिव लिखता है, दिस इज अ क्राइम. यू शुड आस्क हिम टू चेंज हिज लाइफस्टाइल. करेक्ट. भाई आप वेट कम करो, आप नमक कम खाओ, आप एक्सरसाइज करो. Writing medicine on a day one on a borderline hypertension, it should not be done. आई हैव सीन यू, आप कभी दवाइयां लिखना I- प्रेफर ही नहीं करते डॉक्टर हैं. नहीं है. जी. Similar diabetes. So all these things should be डॉक्टर को तो रोल ही होना चाहिए कि आप उसको हेल्दी लाइफ, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ध्यान दो ना यार. क्यों तुम जबरदस्ती दीवान पड़ के. प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर समबडी कुड बी जस्ट लाइक आप सो जाओ ढंग से. That's it. जैसे कल मेरे एक किसी से बात हो रही थी और उसने मैंने पूछा डिनर कितने बजे, कहते अभी तो 11:30 बजे, तो मैं बनाऊंगी डिनर. मैं कहा मतलब ये है ये that is we have also become part of this thing now. Correct. This has become part of because but somehow. अच्छा, दूसरी चीज और ध्यान रखना कि भाई all these what we have taught applies to 80% of people. यस. What you have is in your genes. हम कहते हैं ना जन्मपति for me is genes. जो उसमें लिखा गया है, अब लाइक एग्जांपल दूं, ब्रेन ट्यूमर कोई कारण नहीं है ऐसा. मतलब कोई नॉन इटियोलॉजी नहीं है. ऐसा मतलब है, पर ऐसी नहीं है, न्यूरोलॉजी नहीं है. तो अब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कि नहीं तो ना बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, इनको ब्रेन ट्यूमर. दैट्स समथिंग वी इन जन्मपति जीन्स में था, कहीं ना कहीं म्यूटेशन होना था जिससे ब्रेन ट्यूमर हो गया इसको पेशेंट को. सो दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन नॉट प्रिवेंट. बट एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू कंट्रोल 80% ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ by just changing your lifestyle, by your food, by exercising, that should be rewarding.
एंड सर कई बार ऐसा होता है कि हम लाइक घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की है किसी भी चीज़ की अगर आपकी हैबिट सही हो तो मे बी यू कैन डेफर इट मतलब हो सकता है कि जैसे आजकल डायबिटीज 30 में होने लग गई है अर्ली पहले 50 में एक्सेप्ट होती थी। हम हाँ, जुवेनाइल डायबिटीज छोड़ दी, टाइप 1 छोड़ दी, वो तो ठीक। बाकी सब चीज बाकी सब यू कैन रिवर्स देम, यू कैन लाइफ स्टाइल तो यार मतलब लोग आई थिंक दे कैन रिवर्स मोस्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी चाहे पब्लिक हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सोसाइटी, WHO, दे शुड मोर फोकस ऑन अ प्रिवेंटिव मेडिसिन देन रादर देन ट्रीटिंग। नहीं नहीं यार चलो ठीक है, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ, पर प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कोई ना, और इसका करिकुलम स्कूल में होना चाहिए। इट्स लाइक बेसिकली द हैबिट्स एंड द जो आपकी प्रैक्टिस करते हैं बचपन से आप यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन है, क्लीनिंग कैसे रखनी, क्या चीज़ बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है सर आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके एंड ऑल्सो आई थिंक सेम हियर, सेम हियर। सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्न टुडे एंड आई थिंक इन सब चीज़ों को मैं अपनी प्रैक्टिस में भी इम्बाइब करूंगी एंड थैंक यू थैंक यू शिखा, थैंक यू फॉर एन वंडरफुल टाइम। और होप करता हूँ कि थोड़ा बहुत पब्लिक के लिए वी ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम। थैंक यू।